Hello everyone. I'm Dr. Omkar Sangita Dilip from Team AFMG, and today we are very glad that we have with us Dr. Nirali, who has successfully cleared her FMG exam this time in December 2021 session. I would first of all wholeheartedly like to congratulate Dr. Nirali on her immense success. And today we will be seeking some answers to the questions our students usually have before beginning their preparations for FMG. So now I hope Dr. Nirali would be comfortable answering all of those. And let's start without any further delay. First of all, Dr. Nirali, I'm sure that you would be euphoric and elated right now, but still I would like to ask you, how does it feel after crossing the mark? अम, मतलब फीलिंग तो बता नहीं सकते, मुझसे ज्यादा तो मेरे घर वाले खुश है. That So usually happens. they are like at the cloud nine. Right. So now next, Dr. Nirali, moving further, I would like you to introduce yourself, also mentioning the name of the university from where you pursued your MBBS from. Okay. So myself, Dr. Nirali Batwar, and I am from Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine, which is in Jiangxi, Nanchang, China. Okay, great. Which batch did you pass? See, I was in 2016 batch, and it was my second attempt. In the first attempt, I got 144, and then in the second attempt, I got 180 marks. So I would be graduating in 2022 as per the documents, but I have cleared my exam right now, so it would take another 1 year for the graduation. Okay, great. So that takes definitely a courage to be persistent throughout, and definitely you have made it through. So like, there's no one better than you to tell people who would lost hope after this examination, because many of the students do the same. So would ask you questions regarding that as well. First of all, I would like to ask you a question on this thing that most of the people perceived the exam as difficult or maybe a lot uncommon. So I want to ask you कि कैसा था exam pattern, like how was it? एग्जाम वाज मॉडरेट. मतलब के क्वेश्चंस ऐसे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब हमने कभी सुने भी नहीं है. ठीक है, बट उसको हम कंसिडर नहीं करते. कुछ रिपीट्स भी थे, मतलब के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस थे, सेम सेम ऑप्शंस. तो वो क्रैक करना इजी था. उसके अलावा जो हार्ड वाले थे उसको तो कभी कंसिडर किया ही नहीं कि चलो ठीक है, इसमें तो हम मतलब ठीक है, आता ही नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं. जो आता है उसको ध्यान में रखेंगे अगर, तो पेपर वाज मॉडरेट. Great. So this is a very important thing that I can derive from your answer, that there are some questions जो difficult होते हैं जिनको इतना weightage नहीं देना होता, because if you actually give a lot more importance to these questions, you tend to make mistakes in the questions you are very strong at, or maybe the subjects you are very strong at. Then my next question to you, Dr. Nirali, is we would like to know what was your approach towards the examination. As you right now said, I would like you to also throw some light on the difference that you had in the preparations at the first and in the second one, because that would more likely help the students who are actually have lost their hopes, or maybe it would be a guiding light for them. So, go ahead. फर्स्ट प्रिपरेशन सबको पता है, फर्स्ट वाली एकदम कड़क होती है, मतलब कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम. ठीक है, पर वो मैं ये कहूंगी कि जो मेरी फर्स्ट एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन थी उसने सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत हेल्प किया है. मतलब लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो सब भूल चुके हैं, लेकिन वो भूले नहीं होते, उनके दिमाग में होता है. और सबकॉन्शियस मेमोरी ऐसी होती है ना कि हमको पता होता है इसका आंसर ये है, जो फटाक से क्लिक होता है, जो मतलब कहते हैं गट फीलिंग, हाँ वही आंसर सही होता है. तो वो चीज लाने के लिए जो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका पढ़ा हुआ बहुत काम आया. और फिर जो सेकंड सेकंड टाइम जब पढ़ा तो वो रिवीजन ही था काइंड ऑफ. और कुछ सब्जेक्ट्स मैंने फर्स्ट वाले प्रिपरेशन में लीव कर दिए थे, तो उसको मैंने पहले ले लिया. जैसे कि अगस्त, जुलाई अगस्त, ये दोनों मंथ है, उसमें मैंने जो सब्जेक्ट्स लीव कर दिए थे वो सब्जेक्ट्स को मैंने शुरू किया, वहीं से शुरू किया. और फिर उसके बाद जैसे धीरे 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 वो दूसरे सब्जेक्ट्स आते गए जो पुराने मैंने पढ़े हुए थे अच्छे से, तो उन उन सब का मतलब टोटल मिला के फर्स्ट वाला प्रिपरेशन ज्यादा बेटर था सेकंड वाले से. सेकंड वाला काइंड ऑफ रिवीजन. Great. So ये बहुत important बात कही है तुमने अभी. Like the thing is, whichever subjects you leave in the first time, you need to cover them at first. मतलब जो subjects छोड़े हैं or the subjects you are weak at,
that are to be given importance because those are the subjects जो तुम्हारा confidence lower down करते हैं कहीं ना कहीं. So that was a great thing that you did. So as you said, you completed all the subjects. Like what difference do you feel कि बहुत लोग बोलते हैं कि 10 subjects 12 subjects पढ़ के जाओ तो exam easily हो जाता है. So what is your take on that? ये तो कहीं प्रूव नहीं है कि आप 10 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, 12 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, इतना करके कोई सब्जेक्ट मतलब छोड़ना नहीं होता है. सब सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ता है. मैंने अभी भी देखा है कुछ कुछ लोग जो मेरे लाइब्रेरी में बैठते थे, वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, मेरा चौथा अटेम्प्ट है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया. मैंने कभी उनको सुना ही नहीं. अगर मैं उनको सुनती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं हूँ. उनको मतलब ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना है. अब मैं तो कहती हूँ कि फ्रेंड्स बनाओ, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ कि जो ना पॉजिटिव एनर्जी देते हो. और लकीली मेरे फ्रेंड्स वैसे थे जो पॉजिटिव एनर्जी देते थे. True, true. That's great, that's great. So क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, there are 10 types of advices and फिर वही होता है, people get confused. So हाँ, now मतलब मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि फैंसी चीजें, ओए वो देखा क्या, ओए वो वीडियो आया, वो देखा क्या. मैंने कभी उसको देखा ही नहीं. मैंने मेरा नोट्स फॉलो किया. लोग लोग मतलब ऐसे शॉर्टकट्स के पीछे दौड़ते थे. शॉर्टकट कभी कोई वे नहीं होता है. आपको मतलब आपकी मेहनत ही काम आती है. शॉर्टकट्स कभी कोई मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है शॉर्टकट. that's true, that's true. Hard work does not have any other option. So my next question to you is, Dr. Nirali, ki what was the role of AFMG in your preparations? AFMG was like ड्रग. मतलब कि उन्होंने मतलब उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ. तो जो भी टीम है पूरी AFMG की, माय मेंटर्स डॉक्टर विकास, डॉक्टर विनायक, एवरीवन, यू आल्सो, यू वर लाइक कैटलिस्ट. Thank you. पूरी So मतलब पूरी जो टीम थी, कोई भी ले लो, जैसे महेश सर है, सोनिया मैम है, कभी भी उन्होंने मतलब ऐसे नहीं, मतलब हमेशा हेल्प ही किया है. अच्छे मतलब अच्छे लोग हैं. मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत मतलब बहुत अच्छा था. और मैं मतलब मेरे जूनियर्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज गो एंड जॉइन AFMG. which faculties did inspire you? पर्टिकुलरली कोई फैकल्टी नहीं है. मैं कहूंगी 19 सब्जेक्ट, सारे टीचर्स, टीम स्पार्क, एवरीवन. Great, thankful. Now I want to ask you an important question that बहुत बार होता है ना, people tend to not solve MCQs. So what is your take on that? कि how much it is important to solve MCQs or to give tests on a regular basis, and how effective were they in AFMG for you? सी, मैंने लोग देखे हैं जो बोले कि मतलब मैंने एक भी MCQ सॉल्व नहीं किया और मेरे मार्क्स आए बहुत अच्छे, मतलब मैं पास हो गया, पास हो गई समथिंग. और फिर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि इतने MCQs किए फिर भी मेरा नहीं निकला. पर आप मतलब ठीक है, अब दो दो चीज पे माइंड काम करता है. एक, आप जब थियोरी पढ़ते हो तब ब्रेन अलग वर्क करता है, और जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो ब्रेन अलग वर्क करता है. तो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मतलब अगर आप 300 क्वेश्चंस इन अ डे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसको रिव्यू करना होता है, बहुत टाइम चाहिए होता है. अगर आपके पास टाइम नहीं है, सो यू गो फॉर 50 क्वेश्चंस. मतलब 50 क्वेश्चंस कहीं पे भी मिल जाएंगे. आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी मतलब पर्टिकुलर, जैसे AFMG का ऐप है, उसमें भी क्वेश्चंस है, उसमें भी मॉक टेस्ट है. आपको रिव्यू करना होता है चीजें, बट क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है. आप मान लीजिए लास्ट 1 मंथ में मैंने मोर देन 500 क्वेश्चंस किए थे 50-50 करके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था इतना कि मैं 300 क्वेश्चंस रिव्यू करने जाऊँ. मैंने मोर देन 500 क्वेश्चंस किए थे. और वो जो चीज मतलब जैसे कि AFMG का टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें क्वेश्चंस आते थे. तो उस क्वेश्चन में मतलब मेरा ठीक है, मैं अपने दिमाग से भी कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे होते थे ना कि जो दिमाग लगाने पे भी नहीं होते थे, फिर वो सबकॉन्शियस मेमोरी वहां पे काम आती थी, जो गट फीलिंग वाला आंसर होता था. और जैसे मार्क करोगे आपको तुरंत तभी आंसर पता चल जाता था. तो वो सबसे अच्छी बात होती थी कि आपको तुरंत पता चल रहा है आंसर. और कुछ चीजें मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आते थे, तो मैं आप ही को मैसेज करती थी कि सर ये कैसे होता है, ये क्यों होता है. True, true. So the most important thing is कि जो चीजें नहीं पढ़ी हुई या फिर एटलीस्ट नहीं याद आ रही, in that things you need to trust your instinct. जो तुम्हारा दिमाग हम्म. कहता है, that's the right answer. Right, हम्म. great. With in align to this, I need to ask you a very important question, and that is very much specific to you. How did you learn the art of reading a question in 2 seconds and answering it? वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. वो मुझे भी नहीं पता, बस वो क्वेश्चन ऐसा होता था कि कुछ कुछ कीवर्ड्स होते थे जो तुरंत पकड़ में आ जाते थे. वो क्वेश्चन ही ऐसे थे. वो So, ऐसे आ जाते थे, जैसे कि वो आयरन चिलेटर वाला था. ठीक है, मुझे पता था वो डेस्पेरोक्सामिन है, मैंने ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया. true.
So that's very much important कि बहुत बार ऐसा होता है, there are keywords in the questions that you need to pick. और ये पहले से अगर MCQs practice करते रहेंगे बच्चे, so that would be much easier for them towards the end then, right? Agreed. Now, as you said, your second revision, or you can say the second time you was preparing, it was solely revision. So now I would like to ask you कि AFMG में बहुत सारे programs हैं, chanting sessions हो गए, rapid revision sessions हो गए, T&D by teachers, then QRS, image based sessions by Dr. Vinayak, all of them. Like how much they were effective and how did you use them in your preparations for revision? See, मतलब पूरे सारे प्रोग्राम्स में ओवरऑल मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो थे टेस्ट। उनके जो मतलब वो लोग जो टेस्ट पेपर बनाते थे उसके पीछे मुझे पता है कितना हार्ड वर्क लगता है, आपको भी, सबको। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो टेस्ट पेपर्स थे। मैं पता है कुछ टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सेकंड टाइम, लेकिन जो पहले के प्रीवियस मतलब जो टेस्ट हो चुके थे मैं पेपर लेके जाती थी, घर पे बैठती थी, सॉल्व करती थी उसको, मतलब ऐसे ही कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और मैंने वो वैसे ही सॉल्व किया। अगर कुछ मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे तो मैं पूछ लेती थी, या तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था कहीं से या तो फिर मैं किसी फैकल्टी से पूछ लेती थी। सबसे इम्पोर्टेंट था वो जो टेस्ट वाला। और दूसरा मैं कहूंगी इमेज बेस्ड, क्योंकि उसमें बहुत चीजें कवर होती है, सारा मतलब कोई एक इमेज लेके चलोगे ना आप, उसका फिजियोलॉजी, उसका पैथोलॉजी, उसका मेडिसिन, फार्मा, सब कवर होता था उसमें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर चैंटिंग तब आती है, मतलब चैंटिंग भी इम्पोर्टेंट है, पर वो जब इम्पोर्टेंट है कि आपने खुद से सेल्फ स्टडी की हो पहले। Right. That's important. हाँ, और चैंटिंग काइंड ऑफ रिवीजन ही था वो मेरे लिए। तो मतलब मुझे ऐसा कभी होता था कि लाइब्रेरी में बैठे हैं, कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो चैंटिंग खोल लेती थी, वीडियोस अपलोडेड ही होते थे जब भी, ठीक है, उसको थोड़ा स्पीड में देख लेती थी कि कभी टाइम बचाना हो ऐसा करके। पर वो काइंड ऑफ रिवीजन ही हुआ और वो भी बहुत हेल्प करता है। चैंटिंग में वो क्या है, जो बोलते हैं वो हम सुन रहे हैं, ठीक है, तो कभी एग्जाम में आया तो वो सुना, वो मतलब वो तुरंत क्लिक होता है कि यही आंसर है, पक्का यही है। That's important. So एक होल एंड सोल पर्पस होना चाहिए तुम्हारा कि रिविजन्स जो है उसमें तुम अपने हिसाब से चीजें यूज अप करो फाइनली। No, that's not true कि whatever is working for everyone that will work for you as well. Right, very true. So this is important. Next, moving to a very important question कि after the first one, definitely people almost feel demotivated कि आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता. And in the next preparations too, usually people tend to get off track या फिर demotivated होता है. So what was that thing which kept you motivated throughout? जब रिजल्ट आया, मतलब हम वापस आ गए थे दिल्ली से, दिल्ली में एग्जाम दिया था हमने, फिर हम लोग गुजरात आ गए थे वापस। तो यहाँ पे घर पे रिजल्ट आया और घर वालों के मतलब मुझसे ज्यादा डिसहार्टन वो लोग थे, क्योंकि उनको उम्मीदें होती है, ठीक है, अपना बच्चा कहीं बाहर गया है, उनको उम्मीदें होती है, ठीक है। मुझसे मैं अपने आप को कंसोल करूँ कि उनको कंसोल करूँ, मुझे कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके, मतलब ठीक है, मैं हिम्मत करके उनको बोला कि नहीं पापा, नहीं हुआ है इस बार, नहीं हुआ है, अगली बार पक्का हो जाएगा। तो उनको भरोसा था कि ठीक है हो जाएगा। पर वो जो फीलिंग थी कि फेलियर वाली फीलिंग, शायद वो लाइफ में पहली बार वो चीज मैंने फील किया था कि ऐसा भी होता है। पर मैंने कभी उस चीज को नेगेटिव नहीं लिया। लाइक मेरा 6 मार्क्स से अटक गया था, तो मैंने कभी उसको ऐसे नहीं लिया, क्योंकि अब वो रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं था, ठीक है। मुझे जो करना था फिर से करना था, तो मैंने ये सोच लिया कि ठीक है कोई नहीं, 6 महीने हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, फिर से लग जाते हैं। और जैसे रिजल्ट आया उसके 1 वीक के अंदर ही मैंने फिर से शुरू कर दिया था पढ़ना। Right. And this is very much important कि तुम disheartened ना हो कि rather you gather all your courage and then फिर से जुट गए थे. That's the most important thing क्योंकि अभी भी मतलब like दुख में लोग almost एक महीना निकाल देते हैं. So that should not be done. That's the most important advice I feel. Next would be my question to you is the last 10 to 15 days which we think are the most important ones, rather they reflect in the examination also. So what did you practice in those days? लास्ट के 10-15 डेज वो मतलब अलग ही थे। उसमें ऐसा भी लग रहा था, बहुत एंजाइटी हो रही थी कि यार क्या होगा, कैसा पेपर होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, और प्रेशर में की हुई पढ़ाई आपको भी पता है कि वो मतलब ठीक है याद रहता है, कभी कुछ नहीं रहता है, ऐसा भी होता है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा हो रहा था, बहुत एंजाइटी होती थी। तो मैं क्या करती थी कि हनुमान चालीसा होती है जैसे, हाँ, तो वैसे ही मैं हनुमान चालीसा कभी मन मन में बोलने लगती थी, या तो कभी मतलब ऐसे बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है चलो चाय पी के आते हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेती थी स्टडीज के बीच, इन बिटवीन। और उस टाइम पे मेन जो फोकस था वो सब्जेक्ट्स, मतलब ईएनटी, ऑफ्थेल्मो, पीएसएम,
और ओबीजी एक बार किया था मैंने उसमें, क्योंकि उसके पहले मैं ओबीजी कर चुकी थी, पर वो कैसा हो रहा है कि मतलब मुझे आता था वो सब्जेक्ट, तो इजी वाले को पकड़ा मैंने कि मतलब ठीक है मेरे लिए ये इजी लगेगा, तो मैंने वो ले लिया कि कभी मुझे ऐसा हो कि यार आता है चलो ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बन रहा है ऐसा करके। फिर उस टाइम में मतलब बहुत ही अलग फीलिंग थी वो कि पेपर कैसा आएगा, एंग्जाइटी तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। Right. Anxiety would be at the top in those last 10-15 days, but तुमने बहुत important दो बातें कही कि try to calm down your mind. That can be either a spiritual way or that can be just taking frequent breaks with your friends या फिर just चाय पी के आओ. That's the most important thing to lower down your anxiety for sure. और So एक now, और चीज थी कि yeah, go लास्ट ahead. के 10-15 डेज में सारी फैंसी चीजें आती है। True. सब लोग बातें करते हैं, तो मतलब मैंने अपने आप को लोगों से दूर रखा था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। Yeah, that's very much important. बहुत ज़्यादा advices, बहुत ज़्यादा material आ जाता है, but you need to हाँ। stick to your own material and your own schedule. That's important, right? So now, my last question to you, Dr. Narali, is what advice would you like to give to all the upcoming FMG aspirants? मेरे तो मतलब कुछ फ्रेंड्स भी है ऐसे जो नहीं हुआ, मतलब Yeah. डिसहार्टन हुए हैं, सब हुए हैं। मुझे भी मतलब नहीं विश्वास हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तो मैं मतलब इतना ही कहना चाहूंगी कि आप है ना खुद पे बिलीव करो। आपके घर वाले हम 100% आपको पूरा ट्रस्ट करते हैं, आपको बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो गए कि कैसे नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की थी फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब धोखा दे रही है एग्जाम, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करो, फिर से शुरू कर दो, कोई बात नहीं, जो हो गया, छोड़ो, जाने दो। उसको कब तक लेके बैठे रहोगे? आपको ओवरकम करना है। इसीलिए आप मतलब गिव अप मत करो, कैसे भी। अब आपको अगर मूवी देखने का मन है, जैसे कि फ्रेंड ऑफ माइन, उसको देख के लगता ही नहीं था कि इसने क्लियर किया है एग्जाम, वो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। उसने क्या किया, पूरी एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है कोई नहीं, कोई मूवी लगा ली, जैसे किसी को कार्टून्स पसंद है, कार्टून वाली मूवी उन्होंने वो लगा ली। कोई भी मूवीज पसंद है, आप ऐसे देख लो, जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं आएगा तब तक आप नहीं पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप मतलब ठीक है पहले से जुड़ जाओ अभी से। मैं तो कहती हूँ ब्रेक्स लेना चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब ब्रेक्स काम करता है आपकी मतलब प्रिपरेशन टाइम में, आपकी रिवीजन टाइम में आपको ब्रेक्स लेने चाहिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए, तो उससे आपका माइंड फ्रेश होगा, आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करोगे अच्छे से। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप मतलब खुद पे बिलीव करना मत छोड़ो। लोग कहते हैं कि यार इसने इतना पढ़ लिया, उसको मत देखने जाओ, आप अपने आप को देखो कि आप कितना कर सकते हो, और आप खुद पे बिलीव रखो, सब होगा। तो दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि यही इम्पोर्टेंट बात है कि सेल्फ बिलीफ एंड इसके अलावा सेल्फ बिलीफ आने के लिए यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो तभी आएगा जब यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट मच। यू नीड टू टेक ब्रेक्स एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग आई गॉट. So thank you so much, Dr. Nirali. We were very grateful to have you over and to get answers for all those questions that usually students have. We would once again like to congratulate you and the whole Thank family as you. well. Thank And you to the AFMG team. Thank you, Dr. Vinayak, Dr. Vikas, Mahesh sir, Sonia ma'am, everyone. we are very glad that you have achieved the milestone right now, and we wish you luck and success for each and every milestone that you meet in your life. And thank you so Thank much. you.